Hello students, today we are going to start data sufficiency at www.contempty.com. Okay, so in the reasoning section of various competitive exams, like if we are talking about the banking service, then Bank PO and SBI Bank PO, IBPS Bank PO, and Reserve Bank of India RBI exams. Or if we are talking about the management entrance exam, then there is CAT, MAT, and XLRI FMS, or some other assessment exams like E-Litmus, AMCAT, CoCube. So in the reasoning section on that exam, some questions are asked from data sufficiency. This is new trend because earlier the data sufficiency used to be a part of mathematics. अगर आप देखेंगे CAT के अंदर जो data sufficiency है, that is based upon mathematics. Okay, the questions are totally from the mathematics, and you have to know the basic knowledge about circles and mensuration and average and so on. So in this lecture we are going to start data sufficiency, and there are 5 to 6 questions in any of the competitive exams, banks, E-Litmus or other exams. 5 to 6 question weightage from data sufficiency. So what is the format of the problem like? So first of all, looking at the format of the problem, this is known to be as a direction in the data sufficiency type question, that the question below consists of a question followed by the statements labeled at 1 and 2. लाइक आपके पास फॉर्मेट बता रहा हूँ इसका, कि आपके पास जब क्वेश्चन रहेगा वो इस टाइप से रहेगा कुछ. व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई? ओके, दैट इज़ द एक्चुअल क्वेश्चन. व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई? नाउ there is two statements. First one is y is the mother of z, and second one is z is the brother of a. So you have to answer whether statement 1 is sufficient to answer the question, or statement 2 is individually sufficient to answer the question, or both of them are sufficient to answer the question, or neither A nor B sufficient to answer the question. मतलब ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई, इसका आंसर देने के लिए क्या स्टेटमेंट फर्स्ट सफिशिएंट है, या स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट है, या फिर दोनों 1 एंड 2 सफिशिएंट है, या फिर दोनों में से कोई भी सफिशिएंट नहीं है इसका आंसर देने के लिए. सो दिस इज अ पैटर्न. लाइक आपके पास एक क्वेश्चन है एंड देयर आर 2 स्टेटमेंट्स लेबल्ड 1 एंड 2. मैंने बताया 2 स्टेटमेंट्स लेबल है. नाउ यू हैव टू डिसाइड, आपको ये डिसाइड करना है दैट इफ दीज स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट टू कंक्लूसिवली आंसर द क्वेश्चन और नॉट. सो गिवन आंसर आपको A B C D E, दे आर द ऑप्शन, इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज करना होता है उस क्वेश्चन के में. लाइक अब जैसे ये क्वेश्चन है, सो व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई, ये क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट्स गिवन है, वाई इज़ द मदर ऑफ जेड एंड जेड इज़ द ब्रदर ऑफ ए. सो व्हाट आर द ऑप्शंस हियर? ऑप्शन इज ए बी सी डी एंड डी. व्हाट डज मीन बाय ए हियर? ए मीन्स इफ स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट. अगर पहला स्टेटमेंट जो वहाँ पे लिखा हुआ है वो इंडिविजुअली सफिशिएंट है आंसर करने के लिए क्वेश्चन का, but statement 2 alone is not sufficient to answer the question, then you can say that the option will be A. Okay, and if sufficient 2 is sufficient to answer the question but statement 1 alone is not sufficient, then you can say that the answer will be. And if you can get the answer from 1 and 2 together, although neither statement by itself sufficient, मतलब कि अगर फर्स्ट और 2 दोनों को कंबाइन करके आंसर दोगे आप उसका स्टेटमेंट का, तो वो आंसर आपका करेक्ट होगा. परहैप्स नीदर, उनमें से कोई भी इंडिविजुअली उसका आंसर नहीं दे सकता. नाउ इफ स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट एंड स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट, कि दोनों ही सफिशिएंट हो इंडिविजुअली, कि पहला भी आंसर दे सके दूसरा भी आंसर दे सके, उस केस में आप डी का यूज करोगे. And if you can't get the answer from statement 1 and 2 together, but still more data are needed, अगर आप 1 और 2 दोनों से ही आंसर नहीं दे सकते हो, देन आपको वहाँ से क्या करना पड़ेगा, लाइक ऑप्शन ई टिक करना पड़ेगा. जैसे इसका मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको.
लाइक अगर ए की बात करें, एग्जाम्पल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। अब पहला जो स्टेटमेंट है आपका वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 5। तो क्या आप स्टेटमेंट 1 से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो या स्टेटमेंट 2 से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो? स्टेटमेंट 2 से हम x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज स्टेटमेंट 2 के अंदर दो वेरिएबल्स है, एक x और y। जब भी कभी आपको दो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है, देन यू मस्ट हैव टू डिफरेंट इक्वेशन। दो वेरिएबल के लिए आपके पास दो इक्वेशंस होने चाहिए। सो सेकंड statement second is alone not sufficient to give the answer. So what is the value of x? Yes, definitely the statement first is sufficient to answer the question because it is an quadratic equation, x square plus x plus 3 is equal to 0, and we know that from quadratic equation we can easily find the value of x with the help of quadratic formula, that is x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac under root upon 2a. So you can find the value of x from the statement 1. So we can say that the statement 1 is sufficient, or alone is sufficient to give the answer. So hence the answer for the question is a itself. Okay, फिर अगर सेकंड का एग्जांपल ले हम b के लिए, इसके लिए अगर एग्जांपल ले किस तरीके से लेंगे, क्वेश्चन इज सेम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ओके, द ऑप्शंस आर डिफरेंट. So what is the value of x? So option 1 is x square plus y square is equal to 4, that's statement 1, and second is x square is equal to 4. So statement 1 is not sufficient to answer the question, yes, and statement 2 is alone sufficient to answer the question. So we can say that in that type of example the answer will be B, that statement 2 is alone sufficient but statement 1 is not sufficient. Okay, now third one C के लिए अगर हम क्या देखें, the C लिखा हुआ है यहाँ पे, if you can get the answer from 1 and 2 all the together. Okay, तो क्वेश्चन यही रखते हैं हम, what is the value of x? ऑप्शंस चेंज होंगे, इसके लिए ऑप्शंस कैसे चेंज होंगे, क्वेश्चन मैं दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ, what is the value of x? Okay, statement 1 is x plus 4y is equal to 9, and statement 2 is x minus 4y is equal to 5. So can you give the value of x from statement 1 alone? Yes, tell me. No, because in case of first statement there are two variables, and we know that if there are two variables then we have to find we have two different equations. Okay, can you give the answer from second individually, x minus 4 is equal to 5? No, आप सेकंड से भी इसका आंसर नहीं दे सकते हो. वाई? बिकॉज सेकंड के अंदर भी दो वेरिएबल है, एक्स एंड वाई, और आप एक वेरिएबल फाइंड कर सकते हो एक इक्वेशन से, बट दो वेरिएबल के लिए आपको दो इक्वेशन होनी जरूरी है. बट अब अगर हम इन दोनों को देखें, इफ़ आई एम एडिंग 1 प्लस 2, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इनको ऐड करता हूँ, ठीक है, मैंने ऐड किया तो ये जो कैंसिल आउट हो जाएगा 4y से 4y, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, वी विल गेट 2x इज इक्वल टू 14 एंड x इज इक्वल टू 7. ओके, सो वी हैव फाइंड वैल्यू ऑफ x. किसके साथ हमने x की वैल्यू फाइंड की? इफ़ देयर आर टू इक्वेशन. अगर मैंने इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली कंक्लूजन साइमल्टेनियसली इनका फाइंड किया, अगर मैंने इन दोनों को साइमल्टेनियसली कंसीडर किया तब मुझे x की वैल्यू मिली. इट मीन्स दैट मुझे जो x की वैल्यू मिली वो दोनों इक्वेशन से मिली है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से. सो द आंसर इज C. बट इंडिविजुअली इनमें से कोई भी सफिशिएंट नहीं है आंसर देने के लिए. रिमेंबर दैट x प्लस 4y इज इक्वल टू 9 इंडिविजुअली नहीं सफिशिएंट. सिमिलरली x माइनस 4y इज इक्वल टू 5, ये भी इंडिविजुअली सफिशिएंट नहीं है. समझ में आया? तो अगर दोनों ऑप्शन, जो दोनों स्टेटमेंट है वो सफिशिएंट होंगे तभी आप उसका आंसर सी कर सकते हो. अगर उनमें से जो एक भी सफिशिएंट नहीं होगा तब नहीं कर सकते. अब डी के लिए अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें, यहाँ पे
if statement 1 alone is sufficient and statement 2 alone is sufficient, दोनों ही sufficient हो, तो what is the value of x? What is the value of x here? So statement 1 is x square plus x plus 3 equal to 0, and statement 2 is x square plus x plus 4 equal to 0. So we can give the answer from 1 individually and from 2 individually. हम 1 से भी दे सकते हैं x की वैल्यू और सेकंड से भी दे सकते हैं हम x की वैल्यू, ठीक है, ओके। तो 1 से भी हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और सेकंड से भी x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जब दोनों से आप x की वैल्यू फाइंड कर सको, दोनों से आप जो गिवन क्वेश्चन है उसका आंसर दे सको, देन द ऑप्शन विल बी डी। नाउ इन केस ऑफ ई, लाइक अगर दोनों ही सफिशिएंट नहीं है और ज़्यादा डेटा की रिक्वायरमेंट है, तब आप ऑप्शन करोगे ई। जैसे ई ऑप्शन के लिए अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ, देन ई के लिए हमारा क्वेश्चन तो सेम है, बट स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 9, एंड स्टेटमेंट 2 इज एक्स स्क्वायर प्लस 3z इज इक्वल टू 4. सो 1 is not sufficient alone and second alone is not sufficient also. तो इन दोनों में से कोई भी sufficient नहीं है, alone भी sufficient नहीं है, individually भी अगर combine करके भी देखते तो भी sufficient नहीं है, तो in that case answer will be E. तो समझ में आया what is the format and how to tackle the format and किस तरीके से आंसर देना है क्या, और जो ऑप्शंस है वो किस तरीके से रहते हैं, क्लियर, ओके। So further, if you have any query regarding this, then you can write me on aptquant@gmail.com. Okay. So अगर आपको ये ऑप्शन किस तरीके से चेक करना है ये समझ में आ गया, then move to next slide. So the example, what is the relation of x and y? x और y का relation क्या है? Statement given 1 is y is the mother of z, and statement 2 is here z is the brother of a. So before solving the question, I just want to tell you how to tackle these types of problems. Okay, so ये question है, ये जब मैं अभी बता दूंगा कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, किस तरीके से टैकल करना है, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो और बेसिकली इसको आप खुद ट्राई करना, एंड सिमिलर अगर आपको इसमें कोई क्वेरी हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, देन राइट अस ऑन aptquant@gmail.com or just visit www.quantapti.com. Now, how to solve these types of questions?